Hello everyone, welcome back to this course. Today we will start the next topic, which is accountability in governance. We have already seen transparency and now we will talk about accountability. See, this topic itself is very important for your GS2 as well as for your ethics paper, that is GS4. Okay, so please pay attention. I'll try to explain you each and every concept विद utmost डिटेल्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरव्यू अकाउंटेबिलिटी का क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. सो अकाउंटेबिलिटी फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस and it ensures that public officials remain answerable for their actions and decisions. ठीक है, so we will talk about this aspect and then we will see what are the legislative and institutional mechanisms in the constitution. So let us start. First we will talk about the definition of accountability. So ये चीज़ आपको मगअप कर लेनी है because you can directly use it in the introduction. ठीक है, introduction in GS2 as well as GS4. ठीक है, so as per the ARC stands for Administrative Reforms Commission. Okay, so as per ARC, accountability is the obligation of holders of public office to give satisfactory explanation of their actions and inactions. So the keyword here is public office, actions and inactions. So let us try to understand what is public office. तो देखिए, पब्लिक ऑफिस बेसिकली आपकी वो सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं जहाँ पे विच आर ओपन टू एवरीबडी और जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एंट्री लेते हो. ठीक है, तो उन सबको पब्लिक ऑफिस बोलते हैं बिकॉज इट इज ओपन टू एवरीवन एंड यू आर लाइबल टू द पब्लिक, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक फॉर ऑल योर एक्शंस. सो दैट इज द पब्लिक ऑफिस. ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन भी वही कह रही है कि जो भी हमारे पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स हैं उनके हर एक एक्शन और हर एक इन एक्शन की जो आंसरेबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, उनको एक एक्सप्लेनेशन देना है कि उन्होंने पर्टिकुलरली कोई एक्शन क्यों किया, क्यों नहीं किया. ठीक है, सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी इन इटसेल्फ. नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स. सो इफ देयर इज आंसरेबिलिटी एंड देयर इज इन्फोर्समेंट, then it leads to accountability. ठीक है, this is very important as a formula which you can use in the introduction or right after the introduction. Okay, so suppose this is your page. Here you can write the introduction, this introduction, and then just below this you can write this formula that accountability is equal to answerability plus enforcement. Or sometimes it happens that you do not have enough time in the exam, then instead of writing this definition you can directly write this formula in the introduction itself. Accountability is equal to answerability plus enforcement. So this formula can be directly used as introduction itself if you have shortage of time. Okay, now accountability also forms part of your ethics GS4 syllabus and it is under probity in governance topic. So we will deal about this when we read ethics. For now our focus is only on GS2 governance portion. So let us move ahead. Now this is very important. We must know the importance of accountability. Why is it needed? So if there's any question that what is the need slash importance of accountability, of maintaining accountability in public offices, then this is going to be your body points, all these 4 points. ठीक है, तो let us start. तो पहला है कि अकाउंटेबिलिटी इसलिए चाहिए क्योंकि इट प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पावर. ठीक है, यानी कि नो बडी कैन एक्साइज हिज पावर विदाउट बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल. ठीक है, इट प्रिवेंट्स दैट.
सेकेंड है कि इट इंश्योर्स इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, यानी कि आपका जो ड्यूटी है, राइटफुल ड्यूटी, यू आर डूइंग दैट ड्यूटी टूवर्ड्स द पब्लिक, एंड अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव्स सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंसी। इट मीन्स सपोज दैट यू हैव टू गेट योर आधार कार्ड मेड. Now suppose if there is no accountability, then it might take 90 120 days just to get your Aadhaar made. However, if there is accountability, then you can get your Aadhaar made in 1 week, or let's say 15 days. So this improves service delivery and the efficiency also. The last point is that accountability builds trust and legitimacy of democracy. So if there is accountability in public offices, definitely people will trust the public officials, the government servants more, and there is legitimacy in the democracy. This point we have already seen in transparency also. So this is a universal point which you can use across topics, across paper. ठीक है. Next, let's talk about the constitutional articles which deal with accountability. So first and foremost is your Article 75, which states the collective responsibility of Council of Ministers. See, there's a saying which says, we swim together and we sink together, right? So this means that the Council of Ministers is responsible as a whole. If suppose one person resigns, then the whole council resigns. So that is the principle of collective responsibility. This quote you can use if there is any question pertaining to Council of Ministers. The next is Article 148. Article 148 deals with the CAG, Controller and Auditor General of India, and it ensures financial accountability. So the CAG has the work to audit all the government departments and see that the finances are put to good use. So it checks financial accountability, and if there are any irregularities, then the head of those departments have to reply, have to give an explanation. The next article is Article 32 and Article 226, under which we have the writ jurisdiction, right? So writ jurisdiction, you must have read about the 5 types of writs: habeas corpus, right? Mandamus, right? Quo warranto. So all these writs, they place an accountability to the judiciary, right? Then there is also Article 13, which has the principle of judicial review, right? So all these articles you need to quote in your answers to fetch better marks, to ensure that the question asked in GS2 looks like it is from GS2. Because sometimes what happens, people write accountability as if it is asked in GS4, but that is not the motto here. We have to ensure that articles are properly written wherever there is scope, right? So let us now move next. We will now see the types of accountability. This is very easy, you can easily remember, and this structure will help you to break your question, break into parts. ठीक है, you can break your question into parts. आपको एक स्ट्रक्चर करने का आइडिया मिल जाएगा. सपोज अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंट में गवर्नमेंट में करप्शन के केसेस बढ़ गए हैं, हाउ विल यू इंश्योर कि करप्शन कर्ब हो जाए, तो आप उसको बॉडी को इन हेड्स में आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज हेड्स. सो फर्स्ट इज द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे इलेक्शंस आ जाते हैं, आपका लेजिस्लेचर आ जाता है. नेक्स्ट इज द लीगल अकाउंटेबिलिटी, तो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके पास ब्यूरोक्रेटिक आंसरेबिलिटी होती है, ठीक है.
Financial accountability, already we have talked, Article 148 CAG, right? And PAC is your Public Accounts Committee, तो ये भी आपका एक चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करता है फाइनेंसेस के टर्म्स में। फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी आती है आपकी, जहाँ पे सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज, मीडिया ये रोल प्ले करते हैं। आपने सोशल ऑडिट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सोशल ऑडिट एमजी नरेगा में होता है। सो दीज आर ऑल टूल्स, राइट, जो ट्रांसपेरेंसी के टूल्स थे, मोर ओवर दे कैन बी यूज्ड इन अकाउंटेबिलिटी एज वेल. So you must remember these because these can be directly used as frameworks while writing your answers. So now we will see the mechanisms to ensure political accountability, right? So the first one is parliament oversight. So parliament usually have these R's, na, question hour, 0 hour motions, wherein you can ask questions to the council of ministers, any state minister, any cabinet minister. So through these, the legislative or the MP and the MLA, they can ask questions, they can ask reasons as to why the government is taking a particular step. So this is your first. Then the second is elections. So elections also, that every 5 years the government is answerable to the people. ठीक है, हर 5 साल में सरकार को एक बार जनता के दरबार में आना पड़ता है और जनता को बताना पड़ता है कि उसने 5 साल में ऐसा क्या काम किया है कि नेक्स्ट टाइम उसको ही वोट दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज में आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, एस्टीमेट्स कमेटी होती है। तो ये लोग जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसको सीएजी इनको देता है, ये लोग स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं कि पब्लिक जो भी बजट था हमारा या जो भी सरकार ने खर्चा किया है वो खर्चा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना इफेक्टिवली खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको आप एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं कि जो पीएसी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसने बोफोर्स स्कैम एक्सपोज किया था। ठीक है, बोफोर्स एक मिलिट्री इक्विपमेंट है, आई थिंक रॉकेट लॉन्चर या गन है, आप देख लेना, आई एम नॉट श्योर, बट देयर वाज अ ह्यूज इरेगुलरिटीज। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करी थी। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको एक्सपोज किया था। सो यू कैन मेंशन दिस as a case study, right? So next we will see administrative accountability mechanisms. तो देखिए, पहला होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, बी इट ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी, ठीक है, तो सबका ना एक अपार होता है। अपार स्टैंड्स फॉर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू। ठीक है, तो एक ये रिपोर्ट होती है जहां पे हर गवर्नमेंट सर्वेंट को रेटिंग मिलती है, और ये रेटिंग डिसाइड करती है कि उसका प्रमोशन टाइम पे होगा या नहीं होगा, या फिर उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एवरीबडी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी केयरफुल अबाउट देयर अपार्स, क्योंकि अगर अपार में आपने काम खराब किया है और आपको रेटिंग खराब मिलती है, सो देन यू आर आंसरेबल टू योर बॉसेस कि आपके काम में एफिशिएंसी क्यों नहीं है। सो दिस इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देयर इज मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब टेक्निकल स्किल्स का मतलब सिर्फ CSIT नहीं होता है। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि सपोज यू आर इन GST डिपार्टमेंट और आप एक पर्टिकुलर सेक्शन देख रहे हो, सपोज यू आर इन GST डिपार्टमेंट वर्किंग एज एन IRS ऑफिसर। ठीक है, सो IRS के लेवल पे व्हाट आर योर रोल्स, व्हाट आर योर ड्यूटीज, ये तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, बट आपके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो, वो सारे कोर्स आपको मिशन कर्मयोगी में एक साथ मिल जाते हैं। वहां पे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के भी कोर्स रहते हैं। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स टू इंश्योर कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे और जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लेटेस्ट
नॉलेज के साथ जो है अपना काम करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड विजिलेंस। तो देखिए जितने भी ग्रुप ए ग्रुप बी एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये सारे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत कवर होते हैं, ठीक है। और इन कंडक्ट रूल्स में डूज एंड डोंट्स मेंशन है, दैट व्हाट अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन डू एंड व्हाट ही कैन नॉट डू, ठीक है। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ही इज जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। सो व्हेन आई से ही इट मीन्स शी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कंडक्ट रूल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि डूज एंड डोंट्स बताने में। तो इससे क्या है कि आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वे में ही फंक्शन करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। नेक्स्ट इज द विजिलेंस। सो विजिलेंस इज यूजुअली डन टू चेक मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है। करप्शन केसेस होते हैं या कोई भी हैरेसमेंट के केसेस होते हैं तो विजिलेंस डिपार्टमेंट कम्स इनटू प्ले, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज देयर ओन विजिलेंस सेक्शन, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज अकाउंटेबल एंड मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द आरटीआई ऑब्लिगेशंस ऑन डिपार्टमेंट्स। सो एवरी डिपार्टमेंट कम्स अंडर आरटीआई एंड द पीपल इन जनरल कैन फाइल आरटीआई एंड सीक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से भी मैल प्रैक्टिसेस को रोका जाता है, बिकॉज इफ somebody files an RTI then the person who does wrong gets caught, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। अगले देख लेते हैं अगला क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के क्या मैकेनिज्म्स हैं। तो देखिए पहला तो सीएजी ऑडिट होता है, ठीक है। सीएजी अभी वी हैव डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 148, ठीक है। सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो सीएजी ऑडिट में यूजुअली केस स्टडी में आप लिख सकते हो कि 2G स्कैम, ठीक है, इट वाज रिवील्ड। देन द कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, इट वाज आल्सो रिवील्ड। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्कैम ऑल्सो कि अब ऑनलाइन ऑक्शनिंग होती है कोल ब्लॉक्स की, ठीक है। सो दिस यू कैन राइट इन योर केस स्टडीज। देन देयर इज PAC, Public Accounts Committee. So Public Accounts Committee also presents a report due to which the financial accountability is maintained. And then there are acts. So acts are like FRBM Act, ठीक है, Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003. It ensures कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है ना वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का। सो दिस एक्ट्स ये गवर्नमेंट के ऊपर एक फिजिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। देन देयर आर अदर एक्ट्स ऑल्सो लाइक FCRA, ठीक है। तो FCRA आपका बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिया में कितना फॉरेन करेंसी आ सकती है ये उस चीज को रेगुलेट करता है। सो दीज ऑल इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, राइट। यू कैन राइट दीज, you can mug up these institutions and the case studies which I am telling you to frame a good answer. नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए लीगल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जुडिशियल रिव्यू आता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है, ठीक है। और ये आपका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में भी बोला गया था। सो वेन एवर यू आर राइटिंग जुडिशियल रिव्यू, तो जैसे ये आपकी कॉपी है, यू आर राइटिंग जुडिशियल रिव्यू हेयर, देन इन द एग्जाम्पल just mention Maneka Gandhi case and then mention the year if you can remember, 1978. So this itself will make sure that the examiner comes to know that you are well read on the given topic. The next mechanism is public interest litigation, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है कि कोई भी एक अवेयर इंडियन सिटीजन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कैन फाइल अ PIL फॉर सोशल इश्यूज, राइट। सोशल इश्यूज अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, करप्शन रिलेटेड इश्यूज, जैसे विनीत नारायण का आपका केस था 1998 में, ठीक है। तो इन्होंने करप्शन की बात करी थी, ठीक है। करप्शन के अगेंस्ट यहाँ पे रिवील हुआ था कि काफ़ी करप्शन चल रहा है CBI वगैरह में,
ठीक है, हवाला ऑपरेशंस वगैरह में। तो ये केस था, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो इसकी वजह से आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं विच आर कवर्ड अंडर लोकपाल एक्ट, और जिनके ऊपर आप अगर करप्शन के चार्जेस होते हैं तो लोकपाल कम्स इनटू प्ले एंड लोकपाल फिर इन्वेस्टिगेट वगैरह करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स, आप होमवर्क है आपका कि आप ट्रिब्यूनल के आर्टिकल बताइए कि ट्रिब्यूनल के आर्टिकल कौन से हैं एंड ट्रिब्यूनल कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो दिस टू थिंग्स यू मस्ट डू फाइंड आउट एज योर होमवर्क, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। सेकंड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये आपका देखिए इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस डील करता है, और ये आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी यानी कि इन्वायरमेंट के केसेस में आपकी अकाउंटेबिलिटी हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आर दी सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। Some of this we have already studied under transparency, but we'll still see. तो देखिए पहला तो आपका सोशल ऑडिट हो गया, जो हमें एमजी नरेगा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के केसेस में देखने को मिलता है। सेकंड आपका होता है कि मीडिया जो है ना, इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, ठीक है। वॉच डॉग आपका क्या होता है, वो आपका देखता रहता है, और जैसी कोई चीज़ दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो द डॉग कम्स इन टू प्ले। सो दैट इज द रोल ऑफ मीडिया, कि मीडिया इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड एज सुन एज समथिंग रॉन्ग हैपन्स, तो मीडिया उसको कवर करके एक्सपोज कर देता है। सो दैट इंश्योर्स सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि पनामा पेपर लीक था, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, वहाँ पे काफ़ी स्कैम हुआ था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ मिली थी, तो वो मीडिया के थ्रू ही रिवील हुई थी। नेक्स्ट है आपका सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, ठीक है, जो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन है, ठीक है, जन सुनवाईज है, तो इनके थ्रू भी आरटीआई वगैरह, ठीक है, ये लोग आरटीआई डालते रहते हैं ताकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाए। और नेक्स्ट है आपका सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। तो ये बेसिकली आपका बैंगलोर में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ केस लॉज हैं हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड आंसर्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला है आपका राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975। यहाँ पे बोला गया था कि जो भी राइट टू नो है ना, यानी जो आपका आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998। ये अभी ऊपर डिस्कस किया था कि यहाँ पे करप्शन वगैरह के चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीआई को ऑटोनॉमी के लिए गाइडलाइंस इशू की गई थी, ठीक। नेक्स्ट है आपका मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मॉनिटर किया था आपका कोल स्कैम, और इसके बाद से ही आपका ई ऑक्शन होने लगा था कोल ब्लॉक्स का, ठीक है। सो दीज आर फ्यू जजमेंट्स which if you quote in your answers, this will definitely improve the quality of your answers. Okay, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशंस हैं। सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशंस आर वेरी यूजफुल when you are writing way forward in your answers, because this is credible government source. You must know few of the recommendations. तो पहली रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें रूल बाउंड से परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है। रूल बाउंड यानी कि अभी बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंश्योर होगी, लेकिन ये बहुत रिजिड है। तो एआरसी ने रिकमेंड किया था कि हम रूल बाउंड से परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं। सेकंड है कि जो आपका सिटीजन चार्टर है ना, ये एक इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए, यानी कि एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव सिटीजन चार्टर एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो द सिटीजन चार्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपका इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंट में आपको पता होगा केस हुआ था कि जो पीएम रिलीफ फंड है, सो पीएम रिलीफ फंड को ऑडिट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे बोला गया था कि इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की होनी चाहिए, यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी हैम्पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एआरसी का भी वही कहना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई
या कोई दूसरा डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा, तो दिस इज बेटर। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट फॉर मिनिस्ट्रीज, राइट, कि मिनिस्ट्रीज कैसा परफॉर्म करेंगी, क्या टारगेट होगा उनका, तो ऐसा कोई एक अग्रीमेंट होना चाहिए ताकि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जा सके, राइट। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जो अकाउंटेबिलिटी में यू कैन कोट। सी दिस इज नॉट कंपल्सरी, it may happen that you might not be able to quote any of these and that is perfectly fine, but you must know these, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन में आप कहाँ पे इसको कोट कर सकते हो। तो देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे आपका मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कन्वेंशन है, ठीक है। जो OECD कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपकी रिजल्ट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। न्यूजीलैंड में आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 है। यूएस में आपका कॉन्ग्रेंशियल हियरिंग्स होती हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो ये कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, इसमें से आप बस ट्राई करो कि न्यूजीलैंड का याद रख लो और यूएस का याद रख लो, ठीक है, बिकॉज दीज आर थोड़ा सा याद रखना आसान है। और इसमें आप ये यूजुअली यूके एंड OECD तो पीपल राइट, बट यूएस एंड न्यूजीलैंड इज स्लाइटली यूनिक। नेक्स्ट कुछ डेटा देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। सो इंडिया की रैंक जो है ना वो 93 है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 के, ठीक है। तो 93 रैंक है आउट ऑफ 180 और 23% ऑफ पेंडिंग रिकमेंडेशंस है, ठीक है। 2022 के CAG ने बताया था रिपोर्ट ने कि 23% ऑडिट रिकमेंडेशंस आर पेंडिंग फॉर 3+ ईयर्स। सो दिस इज अ नेगेटिव डेटा विच यू कैन यूज टू शोकेस कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी इतनी क्यों नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव डेटा, ठीक, विच यू कैन यूज कि अभी देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बिकॉज वी आर रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्री। दिस रैंक कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड, ठीक है। वी कैन यू कैन राइट योर कंक्लूजन that India is currently ranked 93 and we can make improvements so that India comes under 50 in the corruption perception index, ठीक। वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस इंडिकेटर्स ने भी बोला है कि इंडिया लैग्स इन वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर केस स्टडी ओनली विच यू कैन राइट। तो सबसे पहले देखिए 2012 में आपका CAG ने 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट दी थी, यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का पता चला था। फिर 2019 में जो आपका EVM था, यहाँ पे VVPAT यानी कि वेरीफाइबल वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, इसके लिए बोला हुआ था कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। तो बेसिकली व्हेन यू गो एंड यू वोट तो एक स्लिप निकलती है जहां पे मेंशन होता है कि आपने ये वोट किया है, जस्ट टू वेरीफाई बिकॉज देयर वर एलिगेशंस ऑन EVM कि बटन दबाते हैं और दूसरे को वोट जाता है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए VVPAT को 2019 में लाया गया था। फिर 2022 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से इतने लाख की सेविंग हुई है, ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी शो करता है। ये आपका पॉजिटिव एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर 2024 में आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों जीरो थे, ठीक। तो ये कुछ आपके केस स्टडीज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस टू अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए चैलेंजेस टू अकाउंटेबिलिटी बेसिक बड़े कॉमन चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है कि जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई, ठीक है, या फिर हमारी CBI टाइप CBI CVC टाइप बॉडीज़ हैं, तो यहाँ सब में ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी हैम्पर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ दी पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। सो पार्लियामेंट में डिसरप्शंस हो जाते हैं, सिटिंग में MP MLA वो लोग जो है डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, सिटिंग्स हो नहीं पाती हैं टाइमली। तो इन सब की वजह से क्वेश्चन आवर वगैरह ये सब उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी गेट्स हैम्पर्ड। नेक्स्ट इज द जुडिशियल डिलेज एंड द केस बैकलॉग, बिकॉज ऑफ विच जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, पीपल आर नॉट एबल टू गेट जस्टिस, ठीक है, एंड दिस हैम्पर्स द स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी अगेन। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कोट कर सकते हो कि सीक्रेसी के चक्कर में जो आपका आरटीआई होता है ना, कई बार आरटीआई के रिप्लाई में बोल देते हैं कि ये चीज़ सीक्रेट है, रिवील नहीं कर सकते, तो उस वजह से आपकी अकाउंटेबिलिटी हैम्पर होती है क्योंकि आंसरेबिलिटी नहीं है। और लास्ट है आपका वीक प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स। ठीक है, ये सेम चीज़ हमने ट्रांसपेरेंसी में भी देखी थी कि जो विसल ब्लोअर्स हैं इंडिया में ना, दे आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड इवन इफ देयर इज एन एक्ट, सो इट इज़ नॉट इन्फोर्स्ड प्रॉपरली। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सत्यम दुबे का एग्जाम्पल, ठीक है, तो माफ़ करिएगा, इट वॉज सत्येंद्र दुबे। ठीक है, तो मैंने आपको सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल बताया था कि इन्होंने कैसे NHAI हाईवे में इरेगुलरिटीज़ बताई थी, बट बाद में इन्हीं का मर्डर हो गया था। ठीक है, देन देयर इज अनदर पर्सन मंजूनाथ, सो ही वॉज एन एम्प्लॉय विद द इंडियन ऑयल ऑर्गेनाइजेशन, PSU में थे ये, और इन्होंने एक पेट्रोल पंप को ना सील कर दिया था, उस वजह से इनका मर्डर हो गया था। सो दीज आर दी वीक प्रोटेक्शन वी हैव फॉर दी विसल ब्लोअर्स इन आवर कंट्री। सो इसकी वजह से भी ना लोग आगे आके बताते नहीं हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सो दीज आर दी चैलेंजेस। अब हमने चैलेंजेस देख लिए हैं, तो अब कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं कि भाई वीक अकाउंटेबिलिटी है तो उससे इशू क्या आ जाता है। तो देखिए, इशू सबसे पहले है कि स्कैम और करप्शन ये बढ़ जाता है आपका। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस यानी कि पॉलिसी आपकी इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी रिपोर्ट आई थी कि जो MP लैड फंड्स होते हैं, तो ये यूजुअली MP स्टार्टिंग के 3 इयर्स में खर्च नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट के 2 इयर्स में एक साथ खर्च कर देते हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला होता है। सो यहाँ पे ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपकी फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट है। देन नेक्स्ट इज फिस्कल इनडिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें अगेन करप्शन है या बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर लॉस्ट ऑफ सिटीजन ट्रस्ट। ठीक है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, लोग इनकम टैक्स इंडिया में नहीं देते हैं बिकॉज पीपल बिलीव कि वो गवर्नमेंट उस पैसे को वेस्ट कर देगी, करप्शन में चला जाएगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रस्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या रिफॉर्म्स चाहिए जिससे हमारी अकाउंटेबिलिटी बेटर हो पाए। तो सबसे पहले तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मतलब जो आपकी PAC है या एस्टीमेट्स कमेटी है, इन सबको आपको स्ट्रेंथन करना है। फिर जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना, उनको आप थोड़ा ज़्यादा पावर दो, CVC, सेबी, EC, RBI। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि इन पे पॉलिटिकल प्रेशर कम होगा। सिटीजन चार्टर को इन्फोर्स करना है। ठीक है, वी विल रीड अबाउट सिटीजन चार्टर। अभी के लिए आप इतना जान लो कि हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे लिख के देना होता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सर्विसेज कितने टाइम में वो लोग प्रोवाइड करेंगे। सो दिस शुड बी इन्फोर्सेबल। अभी क्या है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन चार्टर नहीं है या वो अपना सिटीजन चार्टर फॉलो नहीं कर रहे हैं, so there is nothing much you can do. Next is the Amend Whistleblower Protection Act to enforce and strengthen the protection for whistleblowers. और लास्ट है आपका कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो भाई ऑडिट और प्रोक्योरमेंट करने के लिए, ताकि आपके लीकेजेस कम हो पाए। ठीक है, जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा ना, उतना करप्शन कम होगा। सो दैट इज़ वाई फोकस शुड बी ऑन यूजिंग AI और ब्लॉकचेन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का लिंक क्या है एथिक्स से बेसिकली। सो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली लीड्स टू एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, इट इंश्योर्स प्रॉबिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, और दीज ऑल आइडियाज जो अभी हमने डिस्कस किए, यू कैन वेरी वेल यूज दीज इन द केस स्टडीज दैट आर आस्क्ड इन एथिक्स पेपर। ठीक है, वहाँ पे आप, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए थोड़ी सी, तो आपने अभी जो भी केस लॉज पढ़े हैं, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो भी केस स्टडी पढ़ी है, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो एथिक्स में टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फिर देखिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स इनटू कॉन्क्रीट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन्फोर्स्ड। ठीक है, सो ये आपका एक अच्छा कंक्लूजन का लाइन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए अगेन ये हमने देख लिया था ऑलरेडी, पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, लीगल, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स थे, ये देख चुके हैं हम लोग। अब अकाउंटेबिलिटी का साइकिल देख लेते हैं कि साइकिल क्या है। तो देखिए, अकाउंटेबिलिटी का साइकिल क्या होता है
कि सबसे पहले आप डेलीगेट करते हो अपनी पावर, ठीक है। फिर क्योंकि आपने डेलीगेट कर दिया तो दूसरे इंसान को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो आंसरेबल होता है अपने एक्शंस के लिए, और अगर वो कुछ गलत करता है तो उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और उसकी गलती को सुधारने के लिए रिफॉर्म होता है, ठीक। और उससे आपका ट्रस्ट रिन्यू होता है और उस ट्रस्ट की वजह से आप वापस डेलीगेट करते हो, ठीक। अब इसको ऐसे समझते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इलेक्शंस में क्या है कि पीपल वोट एंड पीपल चूज एमपी और एमएलए, ठीक है। तो अब ये जो एमपी और एमएलए हैं, तो लोगों ने, पीपल, दे हैव गिवन देयर पावर टू दीज एमपी एमएलएस, ठीक है। इनको अपनी पावर डेलीगेट कर दी है। अब ये एमपी और एमएलए पीपल के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये पीपल के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, दे विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ठीक। बिकॉज दे आर एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, दे आर आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द पीपल, अगर कोई कुछ गलत करता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। सैंक्शंस यानी कि उसके ऊपर कोर्ट, ठीक है, या फिर लॉज, इसके थ्रू आपने देखा होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और फिर रिफॉर्म्स की बात होती है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा 10th शेड्यूल आया था ना एंटी डिफेक्शन के लिए, तो दैट वाज ए रिफॉर्म डन टू कर्ब हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत जल्दी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहे थे, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। तो इससे क्या है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है और फिर वापस से पब्लिक अगले इलेक्शन में अपना एमपी एमएलए चूज करती है। तो ये आपका अकाउंटेबिलिटी साइकिल है। देखिए, द अकाउंटेबिलिटी साइकिल इंश्योर्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस सिस्टम्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। सो नेक्स्ट कुछ कोटेशंस देख लेते हैं विच यू कैन यूज। तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज टायरनी, ये सेकंड एआरसी में कहा गया है, ठीक है। और दिस अंडरस्कोर्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक। दिस यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर एसे एज वेल, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और ये भी हमारा दिखाता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से वो फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं और एक पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर कोट विच यू कैन यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से रिकैप। तो देखिए, हमने मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझ लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, केस स्टडीज मैंने, और केस लॉज, ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। जो भी 5 टाइप के पॉलिटिकल, जुडिशियल वगैरह जो अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स थे, वो भी यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। केस लॉ, एआरसी वगैरह, ग्लोबल केस स्टडीज सब डिस्कस हो गया, चैलेंजेस, रिफॉर्म्स भी डिस्कस हो गए हैं। सो नाउ इफ एनी क्वेश्चन कम्स, ठीक है, तो ये आपके कुछ पीवाईक्यू थे, ठीक है। पीवाईक्यू में आप देख सकते हो अकाउंटेबिलिटी टर्म यूज्ड, अगर आपको सिटीजन चार्टर नहीं भी पता है, ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, बट सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस, then also with this keyword only you can write a decent answer, because I have told you all the concepts related to accountability, ठीक है। अब देखिए, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, क्वेश्चन आर, 0R, राइट। वी हैव रेड ऑल दीज इन द लेक्चर। सो गाइज, इस लेक्चर में हम यहीं पे रखते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।